Hello student, myself Professor Anjali Patel from Raffle BBA College, Vapi. Our subject Entrepreneurship Development with respect to your semester 3rd in your SY BBA. As you all are aware about that, we have already started with our unit number 2, that is Entrepreneurship, Creativity and Innovation. You are aware about the contents which we are going to cover in unit number 2. So these are the contents which you are going to cover in unit number 2. I have already explained which are the contents which you are going to cover in unit number 2. We have started with a general meaning of creativity. We know that creativity is nothing but looking the thing in something different point of view. So you are aware about the meaning of creativity. Then we have moved towards the types of creativity. That also you are aware about that. There is a technical creativity and that is non-technical creativity. And you know what is meant by technical creativity, which is your pure creativity, where new technology or products are being created or developed in terms of or in category of creativity. Then you have learned about the non-technical creativity that you know very well. Non-technical creativity is one type of your progress creativity where your method of productions can be changed, where your management system can be changed, where your organization structure can be developed. Then we have moved towards our the entrepreneurship types in more detail. Deliberate and cognitive creativity वो होती है जहाँ पे अपनी स्किल एंड एबिलिटी को यूज करके हम हमारी क्रिएटिविटी को जनरेट करते हैं. Next one was your deliberate and emotion creativity. Creativity will be generated but on the basis of the state of emotion of the people. Then we have moved towards the spontaneous and the cognitive creativity. मतलब जब आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टाइम पे बैठे हो उस टाइम आपको कुछ क्रिएटिविटी नहीं दिखेगी का तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. बट आप जब कोई दूसरा एक्टिविटी कर रहे हो एट दैट टाइम आपको माइंड में अचानक से कुछ क्रिएटिविटी विल बी जनरेट का तो आइडियाज जनरेट होगी. दैट इज योर स्पॉन्टेनियस एंड कॉग्निटिव क्रिएटिविटी. सो यू नो व्हाई व्हाट आर द रीजंस व्हाई पीपल आर मोटिवेटेड टू बी क्रिएटिविटी. Has we know that we need to solve a problem, we need to have a innovative ideas, we need to communicate ideas and value, which so these are the needs which make a people to motivate to be a creativity. Then we have learned about the importance of creativity in entrepreneurship. Why creativity is important in entrepreneurship? Just to create a new ideas, just to develop and improve the products, just to have a new concept with the creativity in our entrepreneurship. And the most important things is the high overall success. If you will have a creativity, you can compete in the market, you can stand at the top position, and that can make you success, that can make you to the way of success. So that is the reason why we have a creativity importance in entrepreneurship. Then we have today we will learn about the techniques of stimulating creativity. Now what is mean by creativity? Creativity is looking at the things from a different point of view. क्रिएटिविटी क्या होती है? वी नीड टू लुक द थिंग्स इन अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. जैसे इफ आई वॉन्ट टू मेक योर टीचिंग इंटरेस्टिंग देन आई नीड टू सी दिस टीचिंग इन अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई मेक दिस सब्जेक्ट मोर इंटरेस्टेड. दैट कैन बी माई क्रिएटिविटी. सो क्रिएटिविटी क्या होती है? लुकिंग एट द थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना, समथिंग विच इज आउट ऑफ बॉक्स. ठीक है, दैट इज अ क्रिएटिविटी. Now, today we are going towards our creativity techniques. So, creativity techniques are deliberating thinking process designed to help to find ideas and to solve a problem. ये techniques हमें ये आइडेंटिफाई करता है कि वी कैन इम्प्रूव अवर थिंकिंग प्रोसेस विच हेल्प अस डिजाइन टू हैव अ मोर आइडिया एंड वी कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम. द मोस्ट कॉमन क्रिएटिव प्रोसेस इज analogical thinking and transfer the idea from one context to new one. So we know that creativity techniques cover what, why and how the creativity and innovation can be covered. So techniques क्या होती है? It cover what, why and how the creativity and innovation will be covered. The steps for your personal creativity and how this creativity can have a creative thinking ability. So today we are going to techniques of stimulating
creativity, where you will learn how you can have a creativity in your entrepreneurship. So जैसे हम छोटे बच्चे थे तब हम बहुत सारे ज़्यादा क्रिएटिविटी रहते हैं, जैसे बढ़ते हैं तो क्रिएटिविटी हमारी समथिंग लॉस्ट हो जाती है। तो हमें हमारा क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए वी नीड टू हैव अ सेल्फ एनालिसिस, वी नीड टू encourage our creativity which we are already having. Everyone is having a creativity in one and other thing, but we need to enhance it. So to reach our organization goal or to be more competitive in market, we need to have a creativity in the entrepreneurship. Okay, so now today we are learning the techniques which will help us to learn how you can enhance, how you can have a creativity in your entrepreneurship. So to stimulate creativity in an organization is very important to encourage the personal creativity and personal बंदे जो इन्वॉल्व है उसको कभी भी डर नहीं रहेगा कि वो एग्जिट हो सकता है। ठीक है, क्रिएटिविटी जितनी आपके मार्केट में आप मेंटेन करोगे फॉर योर एंटरप्रेन्योरशिप, इट विल एनहांस योर एंटरप्रेन्योरशिप, इट विल compete your entrepreneurship in the market, it will have to have organization success. So first of all we know we need to work on himself, मतलब अपने खुद पे हमें काम करना होगा। ठीक है, and then you need to promote। ठीक है, क्रिएटिविटी को हमको बढ़ाने के लिए वी नीड टू हैव के जो हम क्रिएटिविटी हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो वी नीड टू प्रमोट अवर क्रिएटिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आपको अपनी एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएटिविटी बढ़ानी है तो आपको वो क्रिएटिविटी के लिए प्रमोट करना होगा, आपको वो इम्पोर्टेंस दिखाना होगा। देन ओनली देयर कैन बी अ क्रिएटिविटी कल्चर और इनोवेशन कल्चर। सो इट इज वेरी इजी टू टॉक अबाउट अ क्रिएटिविटी, बट इफ वी डू नॉट एक्ट दिस वे वी कांट स्टिमुलेट पीपल अराउंड अस। हम बोलते हैं ना क्रिएटिविटी तो इजी है, बट जब एक्ट करते हैं तब हमें पता चलता है। So there are various techniques to stimulate the creativity, those which we are going to be learn. First है mind mapping. Now in mind mapping you will have your conceptual thinking, where you will enter towards a central idea by having by having your new and related idea to be spread over the center. ठीक है, ये टेक्निक मोस्टली यूज होता है टू सॉल्व योर डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। अब ये टेक्निक को कैसे यूज करना है, ठीक है, टेक्निक ये आपकी लर्न हो सकती है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एनालाइज योरसेल्फ। Now how this technique will work? So let us see how this technique can work. Let us understand that step by step. So first of all creative thinking में, जैसे कि creative thinking में जो आपका first है mind mapping, वो कैसे काम करेगा? First of all you need to write down the problem in the center of the sheet of paper and draw a server line. ठीक है, आपका जो प्रॉब्लम है वो एक प्लेन पेपर में बीच में लिखना होगा। सेंटर ऑफ द सीट ऑफ द पेपर यू नीड टू राइट डाउन योर प्रॉब्लम, और वही प्रॉब्लम से बहुत सारी लाइन ड्रॉ करनी। यू नीड टू ड्रॉ सर्वर लाइन। ठीक है, यू नीड टू ड्रॉ हाउ मेनी, यू नीड टू ड्रॉ प्रॉब्लम्स जो आपका है। ठीक है, उस प्रॉब्लम्स को आपको सेंटर में लिखना है, सेंटर ऑफ द सीट ऑफ द पेपर आपको लिखना होगा वो प्रॉब्लम को, और उसी प्रॉब्लम से आपको बहुत सारी लाइन जो है वो ड्रॉ करनी होगी। देन यू नीड टू राइट डाउन द कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स किस में लगेंगे? जो लाइन आपने ड्रॉ की ना, तो वहां पे आप लिखोगे, यू विल राइट डाउन at the end of each line you will write down your different keyword related to the problem, because वही चीज आपके माइंड फ्लो को जनरेट करेंगे। डिफरेंट आइडियाज जो आपने कीवर्ड लिखा है ना, उसी से आपका डिफरेंट आइडिया जनरेट होगा, एंड यू कैन हैव अ रैंडम कनेक्शन बिटवीन ईच ऑफ द आइडिया। ठीक है, उसके बाद आपको रैंडम कनेक्शन के बीच में आइडिया को जनरेट करना है, एंड फाइनली इट विल कंप्लीट द प्रोसेस बाय एनालाइज ईच ऑफ द कॉम्बिनेशन दैट यू हैव क्रिएटेड। ठीक है, तो माइंड मैपिंग काम आप कैसे करोगे? एक शीट ऑफ पेपर लोगे, उसमें बीच में प्रॉब्लम लिखोगे, उससे आप अपनी लाइन सॉल्वर लाइन ड्रॉ करोगे, हर एक लाइन में आपकी कीवर्ड रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स आप मेंशन करोगे, एंड दैट कीवर्ड विल हेल्प अस टू जनरेट द आइडिया। दैट इज योर क्रिएटिव थिंकिंग थ्रू योर माइंड मैपिंग। नेक्स्ट वन इज योर स्कैमर। स्कैमर इज अ चेकलिस्ट दैट हेल्प एन एंटरप्रेन्योर टू डिस्कवर चेंजेस दैट मेक एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू क्रिएट अ न्यू वन। ठीक है, स्कैमर में क्या करना है कि आपको अपना एक लिस्ट बनाना है। ठीक है, जैसे कि स्कैमर का मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स, एस मतलब सबसे कंपोनेंट्स क्या है, मटेरियल क्या है, पीपल क्या है,
उसके बाद सी मतलब स्कैमर का पूरा मतलब, स्कैमर वर्ड का पूरा मतलब कंबाइन विद अदर प्रोडक्ट्स और सर्विस, ठीक है, इंटीग्रेट हो सकता है कि नहीं दूसरे प्रोडक्ट के साथ कंबाइन करोगे, ठीक है। ए मतलब क्या, यू विल एडप्ट और चेंज द फंक्शन, ठीक है, आप चेंज कर सकते हो तो यू विल हैव एन एडप्शन, ठीक है, यूज अनदर पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद एम क्या होगा, मॉडिफाई, यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज और यू कैन चेंज द फॉर्मेट और यू कैन चेंज द कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड पी मतलब यू विल पुट समथिंग इन डिफरेंट यूज, एलिमेंट मतलब जो आइटम लोअर कैटेगरी का लोअर फंक्शन परफॉर्म कर रही है उसको एलिमेंट करोगे। एंड रिवर्स यू विल टर्न अप साइड डाउन, दैट इज अ स्कैमर मीनिंग। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, यू विल लिस्ट डाउन द जो आपके पॉइंट है ना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, उसको लिस्ट डाउन करोगे और उससे अब नया प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट करोगे। नाउ व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग विच यू आर यूजिंग, ठीक है, अभी सभी को पता है ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज बीइंग वाइडली यूज्ड टेक्निक फॉर जनरेटिंग आइडिया। यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग में ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को तो सारे एम्प्लॉयज को एट सडन पॉइंट ऑफ टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आइडिया जो है वो आइडिया जनरेट करने के लिए वो लोग को ऑप्शन देते हैं। अभी यहाँ पे आपके जो आइडिया एम्प्लॉयज दे रहे हैं वो लॉजिकल है कि इलॉजिकल है, वो भी आइडिया को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। एवरी आइडिया फ्रॉम द एम्प्लॉयज विल बी कंसिडर एंड उसमें से जो बेस्ट वन है वो सिलेक्ट होगा, दैट इज योर ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में जैसे कि जो पीपल विच आर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली विद क्रिएटिविटी बट हिज गोल इज टू क्रिएट अ गुड एटमोस्फियर वेयर एम्प्लॉय विल बी रिलीव्ड टू प्रोडक्शन गिव आइडिया, उसको भी कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ आइडिया इज मोर इम्पोर्टेंट एंड ओवर टाइम वी शुड कम टू द क्वालिटी वन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक दो जन को बिठा के खाली आइडिया जनरेट करोगे, सारे एम्प्लॉयज को बोलोगे कि यू कैन गिव द आइडिया, ठीक है, और सारे एम्प्लॉयज के आइडिया को कंसिडर करेंगे, मतलब क्वांटिटी ऑफ आइडियाज इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड उसी क्वांटिटी ऑफ आइडिया में से एक आप लास्ट में यू विल कम अप विद द क्वालिटी वन, दैट इज द ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे एम्प्लॉय हु इज जस्ट लिमिटेड टू थिंक दैट आइडिया इज गुड और नॉट, उसको भी कंसिडर, एम्प्लॉय का आइडिया गुड है कि नहीं बैड है, मतलब वेदर इट इज गुड आइडिया और बैड आइडिया, उसको भी हम कंसिडर करते हैं। मतलब यहाँ पे वी आर अल्टीमेटली गोल ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग इज टू एनकरेज एम्प्लॉय टू थिंक इन अनकन्वेंशनल वे, ठीक है, कि एम्प्लॉय को उसको अनकन्वेंशनल वे में थिंक ओवर करना है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है कि एम्प्लॉयज each and every employee used to participate and they used to give their idea, whether वो लॉजिकल हो, इलॉजिकल हो, गुड हो कि बैड हो, वो हर एक आइडिया को कंसिडर किया जाता है और उस आइडिया में से कोई जो क्वालिटी वन है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। दैट इज योर टेक्निक्स ऑफ स्टिमुलेटिंग क्रिएटिविटी। फर्स्ट वन आपने सीखा जहां पे मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया। फर्स्ट वन माइंड मैपिंग, माइंड मैपिंग में क्या करोगे, एक पेपर सीट ऑफ पेपर में आप अपना प्रॉब्लम लिखोगे, उससे आप बहुत सारी लाइन ड्रॉ करोगे, लाइन ड्रॉ की है, एट द एंड ऑफ द लाइन यू विल राइट डाउन द कीवर्ड्स एंड दिस कीवर्ड will help the mind to flow and generate a different idea from each of the keyword and then you will have a random connection between each of the idea, that is your mind mapping। स्कैमर में क्या करोगे, चेकलिस्ट बनाओगे हर एक आइडिया की और उसी में से आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को कन्वर्ट करोगे न्यू वन में, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में जैसे बोला कि हर एक एम्प्लॉय को बोला जाएगा कि आप अपने आइडियाज जो है वो इम्प्लीमेंट आइडियाज जो है वो जनरेट करके दे सकते हो और उसमें से क्वांटिटी ऑफ आइडिया में से एक क्वालिटी वन सिलेक्ट होगा। तो दिस इज द टेक्निक्स विच आई हैव कवर्ड टुडे इन दिस सेक्शन। जस्ट गो टू द नोट्स एंड जस्ट गो टू द वीडियो एंड देन we will have our live sections, ठीक है। So all just refer the point and just refer the video. Thank you students for listening.